अगर मुसलमान एमपी बन गया तो खाली वो मुसलमान का एमपी बना है, दूसरों का नहीं बना है। तो ये गलत फहमी कि हमारे रोना, अरे हमारे एमपी कम हो गए, एमएलए को, क्या रोना धोना। आप अपने ग्रास रूट लेवल में, अपने कम्युनिटी लेवल में इंटीग्रेट हो। पहले इंटीग्रेट थे, बीच में बाधाएं आ रही हैं, मगर आपको वो बाधाओं को दरकिरार करते हुए इंटीग्रेशन में जाइए। वो इंटीग्रेशन करने भी नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो इम्तिहान है अल्लाह का, मगर हमें वो रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए इंटीग्रेशन। मगर वो मुस्लिम्स को सबसे पहले ये एहसास होना चाहिए कि हमारा ही एक यूनिक कंट्री है जो टेक ऑफ पोजीशन में है। दूसरे कोई एक दो दूसरे कंट्रीज हैं, मगर एज ए 1.5 बिलियन वेयर 250 मिलियन मुस्लिम्स आर रिसाइडिंग, वन ऑफ द लार्जेस्ट, आवर कंट्री इज इन टेक ऑफ पोजीशन। ये मुस्लिम्स को एहसास होना चाहिए। Dr. Abu Saleh Sharif is an economist and a demographer. He has done academic research in development economics, rural development, human development over the last 30 years. He worked as advisor to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. He was a recipient of the Rockefeller Foundation Fellowship to undertake research at the Economic Growth Center of Yale University. He has been invited at the Harvards for lectures. The list of feathers on his cap is endless. We drive straight into a conversation with him on development with a special focus on Indian Muslim community. Welcome, sir. Thank you so much, Ate. Sir, my first question to you. Traditionally, there are two sets of experts. One is the catastrophist and the other one are innovators. The fact is that both of them are sometimes proved wrong. You've been an expert who believes in data and not assumptions. Honestly, how do you see the development of Indian Muslims in independent India? Very long and tough question. An answer deserves a book. Actually, this is the title of a book. Probably the last book kind of thing which we wrote for government is Sachar Committee report. Right. Is the answer for your question. That report was submitted in 2007 to the parliament, and every parliamentarian was given a copy of it to read. And it is a statistical evidence of the Muslim community comparing to comparable groups within the larger community. So it is a statistical treatise with very clear explanations. And also all the data was generated from within the government system. Right. For example, we have a chapter on banking, access to banking by different communities. So the data for access to credit for Muslim community was provided by Reserve Bank of India. Right. Similarly, we have information about access to government provided infrastructure to communities. Right. So because India is a country of villages, there are different varieties and different identities of people live there. So what we found out was, and this data was generated from the data records from the Indian census. Right. And Indian census itself generated this data because normally it is not possible to do it, which showed that wherever the proportion of Muslims increases in the rural area, Mm-hmm. the kind of infrastructure facilities decline. Okay. So there are less number of bus connections to Muslim villages. There are less number of post ka dabba. There are less number of electric connections. So is tarah ka data. So we'll come back to the larger story, but one conclusion we arrived, Mm-hmm. because ultimately as an analyst, as a data expert, in fact, the government of India and many, even Prime Minister for that matter, had assigned a certain amount of confidence in my work during those days. And this is what I shared with them, is that generally speaking,
broadly, whether it is all India or whether it is state, the condition of Muslims is relatively lower to the comparable groups. Who are the comparable groups? That's when Sachar committee reports come into being, because Government of India doesn't create data separately for Muslims. Right. So Sachar committee was mandated to do that. Prime Minister said, authorize me to do that. And Sachar committee, Sachar was the chairman, I was the member secretary. And that is where we put a column for Muslims, comparing that to comparable groups. Okay. So that type of research is very essential even today to understand how all communities, diverse communities of India, are brought up and a certain amount of equity is maintained on some essential promises which government has done. What are the essential promises? Now people say quota chahiye. People say university mein admission chahiye. People say mujhe high paying job chahiye. Those are individually targeted services. But for masses in India, whatever type of community we are, there are certain basic entitlements every household, every human being, and every child has to get. For example, every child has to get immunization. Every child has to have primary school. Every child needs an access to Anganwadi center. Every able-bodied person who wants a job has access to NREGA. These are all basic entitlements. Right. So to do those basic entitlements, you don't need quota. You just need proper implementation of our program. So Sachar committee very clearly recommendation is we didn't use quota not even once in our report. Okay. But people misuse it. They say Sachar committee quota recommendation. No, we did not. What we told the government is the Muslim community over a period of time, at least in let us say UP Bihar, by 2007, if you go back 30 years ago, so the condition of Dalits was like this, right, my right hand, and my left hand is Muslim. So let me start from here. So India's growth took place. So India secular, one of the greatest attribute of India is India has done tremendously well in removing poverty. Right. As it is doing, so different communities are moving up and in a different scale. So what we saw by 2007-8, when we measured, we saw the condition of Dalits improved better than Muslims, and Muslims fell forward. Earlier they were higher. So why did that happen? So that Sachar committee in a way concluded that within the government bureaucratic and developmental implementation, there is a bias. It is called systematic bias. ये ऐसा bias नहीं है, ये जॉब दे रहे हैं, वहाँ एक हिंदू बच्ची है, वहाँ ब्राह्मण बच्ची है, वहाँ पंजाबी है, एक मुस्लिम है, ये मुस्लिम को नहीं मिला, दूसरों को मिल गया. वो अलग तरह का इशू है. Okay. I am not dealing with that. I am not dealing at all in my mind and in my analysis anything which helps creates individual good, personal good. Like आपने मेडिकल में बच्चे को डॉक्टर बना दिया, तो इट्स ए पर्सनल गुड. यस. नेशन के लिए डेफिनेटली डॉक्टर्स चाहिए, मगर फिर भी इंडिविजुअली वो सिर्फ अपनी बच्ची को हेल्प कर रहा है, अपनी फैमिली को हेल्प कर रहा है. कम्युनिटी के लिए हाँ डॉक्टर है वो, मगर आप सबको मैट्रिक पढ़ा दिया और सबको एक बेसिक एंटाइटलमेंट का एम्प्लॉयमेंट दे दिया जो मिनिमम गारंटी होती है इनकम लेवल की. दैट इज पब्लिक गुड. Right. And that is what we need for this nation. And to do that, you don't need any reservation. You have policies already there. I mean, we have to implement them properly. Right. So it would not be incorrect to say that you were actually literally the writer of the Sachar committee report, being the member secretary under the guidance of course, Justice Sachar. The findings in 2006 suggested a pitiable state of Indian Muslims, as you rightly pointed out, even worse than the scheduled castes in at least two states you pointed out.
But today, when you look around, sir, and you see Muslims doing extremely well in various walks of life, there seems to be some paradox. So, do you see a change in the situation ever since you submitted the report? Good question. But tough question for me to reply. The reason is I'm a person who study data. Right. And any statement which I make, even today, even now, the statement which I make, there is a data behind it. Sure. And that data comes out from the government records. Right. All right. So for the last 13, 14, 15 years that I am not in Delhi, I am out of Delhi now, I have not seen the data. Right. So to certainly answer and analyze your question is a little bit difficult. But I'll give you the trend. Yes. Because Sachar Committee data got last 20, 30 years story comprehended in numbers and said this is how the exclusion of Muslim committee was taking place. Right. So in statistics, there is something called trend analysis. So if you have data for last 20, 30 years, you can 90% confidence may, unless there is a major change in the policy, positive, you generally know the trend. For next 10 years में क्या होगा मैं बता दूंगा. Conditions है ना वहाँ पे कि ज्यादा changes नहीं हो रहे हैं. नहीं, बहुत important दे दिया development of that particular committee. Allocations हो गए, ज्यादा स्कूल बन गए, employment भी हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तब बात अलग है. अगर वो नहीं हुआ है तो यहाँ का जो ट्रेंड था वही जा रहा है अभी भी. So मेरा situation है, the gap between even the SC, ST and Muslims has increased now. Okay. If you measure, but you don't have data because हमारी government data नहीं दे रही है. मुझे भी नहीं दे रही है. Government के पास है. Right. But I urge the government because after all, a country, such a big country, now 5 billion economy, huge prospect for India to grow next 2 decades. Next 2 decades कोई इंडिया को स्टॉप नहीं कर सकता. बहुत मुश्किलें हो रहे हैं इंडिया को to bring hurdles in India's path, including the current economic partnership between US and India. Right. वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. There are hurdles. Right. वो भी नहीं हुआ. समझो that doesn't happen. Even then India is going to grow. Right. Absolutely. No doubt about it. For next 20 years. We know why it is. Because हमारा बच्चा जो था baby boomers का वो बड़ा हो रहा है. Right. और हर बच्चा better intelligent than 20 years 30 years ago है. Right. और उनका health condition better है. Right. तो हमारे जमाने में, हमारे पेरेंट्स के जमाने में 45 years was the life expectancy. I am already, don't ask my age, you know how old I am. And I know that our children will live longer than me. Yes. Okay? Yes, At least 10 years more longer than what we are today, Right. average. So that is the growth story of India. India में बहुत growth हो रहा है. मगर इतना बड़ा population है, इतना बड़ा distribution है, तो the issue is certain groups are left out. For example, at the time of independence, we were around 350 million population. The poor people at that time, Tendulkar measure करके है. Yes. We were 70% poor. So that number comes to about 220 million. Right. Now we are 1.5 billion people. But the poor are around 15, 16, 17. There is a disparity, but somewhere around less than 20 है, more than 15 है, ऐसा लग रहा है. Right. अब वो नंबर कैलकुलेट करो तो भी 300 मिलियन पोर है. अब हम उसी घर में जाके इंटरव्यू करेंगे, अरे भैया तुम पोर क्यों हो? तो बोलेंगे हमारे फादर भी पूर थे, उनके फादर भी पूर थे, उनके फादर भी पूर थे. मोस्टली वो दलित होंगे और थोड़े बहुत सब्सटैंशियल नंबर मुसलमानों का मिलेगा. तो आज जो 220 मिलियन पोर हैं उसमें द शेयर ऑफ दलित्स एंड मुस्लिम्स इज ह्यूज. Right. So
पॉवर्टी इज ट्रैप्ड इंटरजेनरेशनल रिसोर्स ट्रांसफर की जो हमने इनफॉर्मली बात की थी जी, वो प्रॉब्लम है पॉवर्टी का। जो रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं वो करंट कंडीशन में इस्तेमाल हो जाते हैं पूरे, कोई चीज बचती नहीं है। अब पुराने जमाने में कोई चीज थोड़ा सोना बचा लिया, कुछ पैसा बचा लिया, प्रॉपर्टी बचा लिया, अपने बेटी में गहने दे दिए, अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे दी, ये होता था। मगर आज वो जमाना तो चला गया। आज क्या देना है? आज आपको एजुकेशन देना है, पढ़ाई। जो पढ़ेंगे बच्चे वो खुद कमा लेंगे और हमारे देश को भी संभालेंगे। मगर कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो वो हिस्टोरिकल पॉवर्टी में फंसे हुए हैं, वही जो हैं आज भी पूर्ण हैं। राइट सर, आई विल गो बैक टू योर, उसमें मुस्लिम्स का शेयर ज्यादा है। आई सी, रिलेटिव मुस्लिम 15% है पॉवर्टी के अंदर, मुस्लिम मुझे डेफिनेटली मालूम है अबाउट 20%, 25%। राइट, बट I go back to what I said in the beginning about the catastrophists. There are also people who work on data projection, and sometimes they do go wrong. And prima facie, when you see things, you know, the kind of development, progress, growth among Muslims, it is quite fascinating, you know. Though of course there will be a majority which will not be, which are only barely able to put their things together and run their household. So do you think that sometimes data also, when you talk about the disparity between the Dalits and Muslims, they could also go wrong? Of course, we'll get a verified data by the end of next year, hopefully in 2027 after the census. So what is your take on this? See, my answers will not be directly addressing that issue now, but Right. I want to give one example. Around 1996, कितने साल हो गए? I was in Delhi. Yes. So I was a kind of data expert, data generated. So a lot of companies also used to come and talk to me. Right. NCAER, I want to specially make a mention of my institute where I used to work. I worked there for 22 years. Is one of the only and the best independent platform Right. which studies India with no strings attached. Independent expert जो भी हैं, Right. junior, senior, independently they think, and from the learning we have done in our studies, we apply those methods and then we try to see what our India looks like. See, India इतना बड़ा है. Sometime within India you go, you look like you don't belong there, right? You look like you are a foreigner. Right. अब उसको एक जगह बैठ के अंडरस्टैंड करना है जब तक डेटा नहीं रहेगा। Yes. और जो डेटा से इंडिया को अंडरस्टैंड करते हैं, दे नो इंडिया बेटर देन एनीबडी, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन डोंट नो व्हाट इंडिया इज। इट इज द इकोनॉमिस्ट, इट इज द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इट इज द सोशियोलॉजिस्ट हु नो व्हाट इंडिया इज। इंडिया के लोग कैसे हैं और क्यों वो सब जुड़े हुए हैं, और इंडिया को कोई स्प्लिट नहीं करते। इम्पॉसिबल टू स्प्लिट इंडिया, यू टेक माई वर्ड फॉर इट। ऑफ कोर्स इंडिया ग्रैंड इंडिया बन सकता है, मगर इंडिया स्प्लिट कभी भी नहीं होगा। What gives you this conviction? Because culturally, in spite of various languages, we are so intertwined. Right. Not only history, culturally we are all glued together. Our Muslims and Hindus are not parallel in India. They are like this in India, Right. everywhere. अर्बन एरिया छोड़ दीजिए, मगर रूरल इंडिया में जाइए तो दे आर ऑलरेडी मैच्ड। True. वो जस्टिस सच्चर बोलते थे, शरीफ तो आपको पता है क्या है यार, ये जो मुस्लिम्स हैं ना इंडिया में, वो अपनी चाय के प्याली में शक्कर की तरह है, घुल मिल गए। Right. आप जुदा नहीं कर सकते उनको, Right. और वो मिठास भी दे रहे हैं। Right. दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। ही वॉज अ ग्रेट विजनरी। Right. Of course. तो वो याद रखना चाहिए। So now I want to probe you more on the point which you made on the bureaucratic bias or prejudice kind of Not bureaucratic, systemic. systemic. What do you mean by that when you say systemic bias? वो somehow what happens is कोई पेन पेपर लेके एक प्रोग्राम में इतने करोड़ हो गए, इतने घर पे पहुंचना है, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें जो एक्सेसिबिलिटी इशू है,
मैं इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल मॉडल में समझाऊंगा। सोशियोलॉजी में एक टर्म है एक्सेस टू कॉमन स्पेसेस। ओके, कॉमन स्पेस, कॉमन, ऑल आर इंडियन सिटीजन्स, कॉमन स्पेस। वहां जाने के लिए किसी को कोई बाधा नहीं है, सब छूट है। राइट, एवरीबडी कैन डू, नोबडी आस्क यू हु यू आर, यू क्रॉस ए ब्रिज। ऑल्दो एक जगह ब्रिज में पूरे गिर गए, वो अलग बात है, मगर ब्रिज क्रॉस करने के लिए सबको छूट है। राइट, दैट इज व्हाट वी वांट इन इंडिया, राइट? यस। तो प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सल प्रोग्राम्स हैं, जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाए, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जैसा प्रोविजन ऑफ ICDS फैसिलिटीज फॉर यंग चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन होता है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। अब ये आंकड़ों में यूनिवर्सल है। यू डोंट इवन आस्क हु यू आर, यू आर ए चाइल्ड, यू विल गेट इट। यू आर तो NREG में आपको काम करना है, हाँ आप जाओ और काम करो और आपका 100 रुपए लेके जाओ, नो क्वेश्चंस आस्क, यू हैव टू बिलोंग टू दैट एरिया। बट वो प्रोग्राम्स में मुसलमान है ही नहीं, तो आपका यूनिवर्सलाइजेशन कहाँ गया? इट कुड आल्सो बी परहैप्स, कहाँ गया? यहाँ ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बोल रहा हूं, मगर आपने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम का प्रचार करना है और बोलना है कि ये यूनिवर्सल प्रोग्राम है, यहाँ हर कोई जो रहता है उसका हक है, अगर यू मीट दैट। अब ICDS में जाना है, बच्चा 3 साल का है, एलिजिबल है, 7 साल का एलिजिबल नहीं है, उसे स्कूल जाना है, ये बोलने वाले नहीं है। और ये मुस्लिम एरिया में जाके किसी ने बताया नहीं मुसलमानों को, राइट? अपना प्रचार पंचायत से हुआ, पंचायत में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, राइट? तो उनको पता कैसे होगा? ये गवर्नमेंट फेल्यूर है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक बायस। But sir, is it really a government failure? Because it is, because when we also see that trend, even today, there is no discrimination in terms of, you know, the accessibility of any government scheme. The problem seems to be that among Muslim, either due to lack of education or some awareness, they are unable to avail these schemes. Yeah, it's called demand and supply issue. हाँ, जो प्रोग्राम है उसका डिमांड भी होना चाहिए। अब डिमांड ही नहीं करोगे, आप उसकी चाहत ही नहीं है, आप उसकी ख्वाहिश ही नहीं, तो आप नहीं जाओगे, तो आप छूट गए। राइट। और सप्लाई, आपका सप्लाई होना चाहिए, रीजनेबल डिस्टेंस में होना चाहिए, सही टाइम पे मिलना चाहिए, सही मिकदार में मिलना चाहिए, जो प्रोग्राम कहता है। राइट। दिस इज small thumb rules of government programs. Sure. So what is happening is demand and supply. तो we analyst हमने ये प्रूव किया. For example, this is a very important example. Somebody has to try it. We have tried it, but government has not tried it. And we have been telling this for last 40 years. क्या बोला? अरे मुस्लिम्स वो मदरसे में चले जाते हैं। बात तो सही है, मदरसे जा रहे हैं, केरला में भी मदरसे जाते हैं, मगर वो केरला ने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया एजुकेशन का, कि आप सवेरे 2 आवर्स वो मकतब मदरसा या हिंदू कल्चर के जो स्कूल्स हैं वो सब मॉर्निंग में 2 घंटों में खत्म कर देते हैं। Okay. And then all children, Hindu, Muslim, go to a regular government school. Okay. प्राइवेटाइजेशन केरला में अभी भी बहुत कम है, सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते। Right. वहाँ हिंदू मुस्लिम बच्चे सब मिलके बैठ के, क्रिश्चियन सब मिलके, एक के बाजू इधर हिंदू बच्चा बैठा हुआ, उधर क्रिश्चियन बैठा हुआ है, इधर मुस्लिम लड़की बैठी हुई है। आई मीन यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर कल्चर एंड देन योर इमोशंस, योर टॉकिंग, योर फ्रेंडशिप जो भी बन रही है, एक इकट्ठा कम्युनिटी बन रही है। So right. Kerala is the best example for that. That's right. Yes. Right. Yes. वो यूपी बिहार में हो रहा है। No. अब देखिए, बिहार के स्कूलों को देखने गया था मैं, तो जिस वो ईयर मुझे मालूम नहीं है, when I went to Bihar schools, then suddenly what I saw is a school that is the only building which look a little bit schoolish. स्कूल भी नजर नहीं आ रहा, schoolish, मगर उसमें एक पीपल का ट्री है, मुझे लग रहा है 100 साल पुराना है। So there is something in that which is government related, और वो एक पीपल का पेड़। मगर उसके बाद
ये जो मछली में बड़ी बड़ी मछली का खतर लगाते हैं ना, एक मछली, दूसरी मछली, तीसरी मछली, चौथी मछली, 6, राइट, उस तरह का खतार खड़ा हुआ है पेड़ के नीचे। पता है क्या है वो? मोटरसाइकिल्स, चमकीले मोटरसाइकिल्स। अब वो गांव में कम से कम 7-8 मोटरसाइकिल्स हैं, उसका मतलब है मिनिमम 7-8 टीचर्स उसमें आ रहे हैं, और विदाउट गांव में रहने वाले सब मिला के 10-12 टीचर्स तो स्कूल में होंगे। एंड देन व्हेन आई वेंट देयर, ये व्हेन यू स्टेप इन, यू सी अ भंडार ऑफ चप्पल्स। कहीं भी आपको एक चप्पल वो दूसरा चप्पल एक जैसा ये जगह नहीं मिलेगा। वो ढूंढने में आपको 5-10 मिनट तो लगेंगे, मेरा चप्पल ढूंढने में। अंदर बच्चे हैं, ठीक है। मैं गया, देखा बच्चों को, टीचर्स को मिला, बातचीत हुई। देन आई सडनली फेल्ट समथिंग इज मिसिंग इन दिस स्कूल। मैंने बोला, मुस्लिम बच्चे हैं यहाँ पे? हैं 1-2, रिजवान, वो बोले, वो उठ कर खड़ा हुआ 2-4। बाद में मैं, कितने मुसलमान हैं, हाथ उठाओ, और 2-4। अब वहां पे 60-70 बच्चे हैं, उसमें 4-5 हाथ उठे। बाद में मैं बाहर गया। अब टीचर को तो ये मैं उनसे इंफॉर्मेशन नहीं लूंगा, मैं कम्युनिटी लेवल पंचायत में जाके पूछूंगा कितने मुसलमान हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ जाते हैं। और बाहर निकल गया। फिर सडनली मैंने देखा कि बच्चे खाने के लिए मिड डे मील्स में बैठे हुए। तो कई बच्चे, वो एक चोटी रहती, मालूम आपको, राइट, छोटे बच्चे में रहते, वो आई डोंट नो विच कम्युनिटीज दे आर। मैं वो कम्युनिटी का ये आइडेंटिटी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर ये ग्रुप जो था वो जा रहे हैं बच्चे, वो उधर प्लेट ले रहे हैं, सब गए, बैठे, खाए, और जहाँ छाया के नीचे बैठ गए, लाइन से बैठे, खाए, सब चले गए, सब हो, खाना भी हो गया। मैं बोला, बहुत अच्छा है, मिड डे मील्स मिल रहा है बच्चों को। मगर मुझे एहसास हुआ कि वहां दलित बच्चे नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है, 5 मुस्लिम बच्चे मिले, दलित एक भी नहीं है। बोला, यार ये क्या हो रहा है? तो आई वेंट अराउंड द विलेज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, इवन नाउ यू गो टू बिहार, you probably will find it. And I have to salute those Brahmin girls who are teaching Dalits in their own homes. Right, right, yeah. That you understood what I'm telling? Of course, that is. उस जमाने तक इतने बच्चे पढ़ लिए, काम नहीं है, वो हाई कास्ट हिंदूस हैं, वो अपने गांव में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, चलो बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं। तो वहां सिस्टम ऐसा बन गया, वो स्कूल के दलित बच्चे या ब्राह्मण के घर के आंगन में बैठ के पढ़ रहे हैं। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल आप इंडिया में दे सकते हैं कोई? मगर क्या ये सराहने की चीज है इंडिया में, या क्रिटिसाइज करने की चीज है गवर्नमेंट को? आप मुझे बताइए। No, that's true, sir. But you know, in all fairness, you cannot blame everything. नहीं, I'm not blaming. You can't say that the government will go and inoculate or vaccinate people. ये मैं ब्लेम गेम नहीं है। right. ये गेम है हमारे देश की सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को, सिस्टम को। तभी तो हम रूल कर सकते हैं, तभी तो डेमोक्रेसी दे सकते हैं, तभी तो इक्विटी दे सकते हैं। अदरवाइज आप किसके लिए बैठे हैं? आप पेन पुश करने के लिए बैठे हैं, या लीकेज बकेट नीचे लेके लीकेज पानी कलेक्ट करने के लिए बैठे? आप निकले ना बाहर। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान होते थे ICS के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, राजस्थान के, बहुत बड़े, बहुत, मैं जब आया तो वो बहुत उम्र हो गई थी। उनका नाम मैं आई एम सो सैड दैट आई कैन नॉट टेक हिज नेम बिकॉज आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ। वो मुझे NCR मिलने आ गए और इतने बड़े पेपर्स ले आए। वो मेरा सेक्रेटरी है सर, ये बहुत बड़े इंसान है। कौन है भी? उनका नाम ऐसा है सर, वो राजस्थान में रहते हैं, ये बहुत बड़े इतने पेपर्स लाए हैं। तो मैंने बोला बुलाओ। तो वो आए, बैठे, पेपर दिखाए। बाद में मैं देखा ही इज फ्रॉम द जनरेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट ICS पर्सन। तो जाने से पहले उन्होंने एक चीज बोली, बहुत सारी चीजें मैं याद नहीं है अभी, मगर एक चीज उन्होंने बोली, याद रखे, Dr. Sharif, there is one thing you have to somehow ensure in your statements, कि ये गवर्नमेंट में बैठे हुए बंदे जो है ना, उनको काम करवाना है उनके हाथ से। देखो, हमने किए पूरी जिंदगी भर, और मेरी जिंदगी में
out of my 250 working days, more than 50% I was not sleeping in my house. I partly agree with you, because every generation thinks that they were the best, and what they did was great. But I personally believe that every generation, the new breed of bureaucrats which are emerging, they have their own ways. Now there is better communication, so perhaps they need not go, they can do video conferencing. So a lot of things are there. But what I want to stress is that, sir, any community, we were talking about the Muslim community, cannot be entirely dependent on the government for their upliftment. What I'm saying is that even Allama Iqbal in his poetry, if you remember, if you've done some study on that, the Muslims should make their own efforts if they want to improve their social condition. Now, what are the three major steps, according to you, which Indian Muslim community need to take to improve their situation? I know that you have not studied Muslim community separately, but from your experiences in data research and developmental studies, what are three major steps which Muslim community needs to take? Yeah, I have to respect Allama's greatness and his contribution. Sure. But I want to differ with him. ये जरूरी है कि कम्युनिटीज जो हैं अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है. वो एक ट्राइबल टेनेंट है. टेनेंट का मतलब है एक पॉलिसी, कि पुराने ज़माने में ट्राइबल्स होते थे, वो लुटेरे होते थे, एक दूसरे को लूट के ले जाते, ये ना स्टोरी. यस. तो अब वो उस माहौल में आपकी कम्युनिटी को बचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, वो पॉलिसी बनानी पड़ती है, वो जायज़ है, आई हैव नो प्रॉब्लम. तो इकबाल वो ज़माने के इकबाल हैं. मगर हमारा देश इंडिपेंडेंट है. हमने कसम खाई है हमारे देश में डेमोक्रेसी और इक्वालिटी लाएंगे और हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे. और उसके अंदर प्रोटेक्शन, हमारी प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पॉलिटिकल लीडर हो, मेरा एमपी हो, मेरा नाम अबू सालेह है, डू यू थिंक आई वांट ओनली अ मुस्लिम एज माय एमपी और माय एमएलए इन दिस कंट्री? नो. An MP and an MLA and my political leader is that one who has devoted his life for this nation. Nationalism. वो nationalism का definition constitution में है कि आप as a माई बाप what you are supposed to do. तो वो जो करेगा, वो कोई जात का हो, कोई पात का हो, मेरे लिए मेरा लीडर का जात पात नहीं होता है, उसका सिर्फ नेशनलिज्म होता है, क्योंकि वो नेशनलिज्म ही है जो हमारे देश को बचाएगा. No, sir. Now let me go back to my question. My question to you was that what are three big things or big steps which Indian Muslims need to take to improve their situation? Yeah. No. I will. Indian Muslims may, because I have written Sachar where I identified Muslims as a category, I think to a limited extent I will accept your question. Otherwise, I would not have talked about Muslim because I am not a Muslim expert. So the point is two or threefold. The first thing I want Muslims to know. मैं दुनिया में बहुत सारे countries, I have traveled more than 58 countries, and most of the places I have gone on lecture tours. I even gone around. For example, England में I was state guest for almost 10-15 days. Pakistan में I was a state guest for 3 weeks. Bangladesh में I gone to Indonesia, Malaysia, जहाँ मुस्लिम कंट्रीज हैं. UN में भी मैं काम करता था. I gone around. I have done the evaluation. I written a report in Sudan for the United Nations. I written a report for Maldives. मालदीव्स उस जमाने से ड्रग में हो गया, अभी खत्म हो रहा है वो बिकॉज ऑफ ड्रग्स. तो हमने ये सब स्टडी किए हैं थोड़ा बहुत माहौल में. तो मेरा ये दिस इज माय वेरी ट्रूथफुल स्टेटमेंट कि इवन टुडे बहुत मुसलमान वो हंसेंगे मेरे ऊपर. जो मैं देख रहा हूँ, विजन बोला ना, मैं 10 साल 20 साल का मैं देख रहा हूँ, जो इंडिया अभी ग्रोथ प्लेन में बैठा हुआ है. अभी तक इंडिया ऊपर गया नहीं है, अभी भी टारमैक में, अभी भी टायर्स टच हैं, तो अब उड़ने वाला है.
उड़ेगा, टेक ऑफ अब हो रहा है, तो वो टेक ऑफ के अंदर मुस्लिम्स छूट गए तो नीचे रह जाएंगे वो। हाँ, तो वो टेक ऑफ के अंदर जाने के लिए मुस्लिम्स को, वो सवाल वही है आपका, मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए। तो मगर वो मुस्लिम्स को सबसे पहले ये एहसास होना चाहिए कि हमारा ही एक यूनिक कंट्री है जो टेक ऑफ पोजीशन में है। दूसरे कोई एक दो दूसरे कंट्रीज हैं, मगर एज ए 1.5 बिलियन वेयर 250 मिलियन मुस्लिम्स आर रिसाइडिंग, वन ऑफ द लार्जेस्ट, आवर कंट्री इज इन टेक ऑफ पोजीशन। ये मुस्लिम्स को एहसास होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, उनको थोड़ा बोलना चाहिए कि इंडिया कहाँ जाने वाला है, सो दैट वो बोलेंगे अरे भागो यार इसके पीछे। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अरे ये जाने वाला है, प्लेन है, हमारे लिए भी है, मगर हमको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, डोर तक जाना पड़ेगा, और डोर में सब लोग भाग रहे हैं, मगर उनको छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ दिया, वो अलग इश्यू है, उसको अलग डील करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन है। मगर दौड़ तो लगाना है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ऐसे कंट्री में हैं जहां दौड़ शुरू हुई है, ये दुनिया में कहीं मुसलमान को नहीं मिल रही है, तो ये पहले अंडरस्टैंड करो। और अब ये दौड़ होगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं भागेंगे, सिर्फ अहमद मोहम्मद नहीं भागेगा, उसके अंदर सब भागेंगे, राकेश भी भागा, वो भी भागा, वो क्रिश्चियन, सब मिलके भाग रहे हैं। तो सब मिलके भाग रहे हैं, तो इन द रेस, जो रेस होता है उसके अंदर हमेशा वो सोचते हैं, एक दूसरे की पर्सनालिटी देखते हैं, अरे यार उसके पाँव कितने लंबे हैं, वो कितने दिन से वो एक्सरसाइज कितना करा, उसका बॉडी वेट क्या है, ये एक दूसरे का पहचानते हैं रेस में जाने वाले। थोड़ा बहुत वो एहसास भी मुसलमानों को करना चाहिए। अपने हिंदू बच्चे, हिंदू भाई जो हमारे बगल में हैं, बहनें हैं, उनका जो कल्चर है, उनका जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमें जुड़ के रहना चाहिए, तभी हम भाग सकते हैं। तुमको अकेले कोई रेस में भागने नहीं देगा, देना भी नहीं चाहिए। मैं खुद नहीं देने के लिए रिकमेंड करूंगा, सबके साथ मिलके कंपटीशन में जाना चाहिए। उसके लिए आप एमपी एमएलए की सूरत नहीं देखिए, बिकॉज मी एज एन इंडियन और अस्यूम दैट मैं एमपी बन गया तो क्या मैं खाली मुसलमानों का एमपी बन रहा हूं क्या? ऐसा हो सकता है? तो अगर मुसलमान एमपी बन गया तो खाली वो मुसलमान का एमपी बना है, दूसरों का नहीं बना है। तो ये गलत फहमी कि हमारे रोना, अरे हमारे एमपी कम हो गए, एमएलए को, क्या रोना धोना। आप अपने ग्रास रूट लेवल में, अपने कम्युनिटी लेवल में इंटीग्रेट हो। पहले इंटीग्रेट थे, बीच में बाधाएं आ रही हैं, मगर आपको वो बाधाओं को दरकिरार करते हुए इंटीग्रेशन में जाइए। वो इंटीग्रेशन करने भी नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो इम्तिहान है अल्लाह का, मगर हमें वो रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए इंटीग्रेशन। आप गेटोइज्म में जाओ, चले जाओ। वो गेटोइज्म जो है वो अल्लाह उससे नजात, मेरी दुआ है इंडिया में। That is another big problem for Muslims. वही प्रॉब्लम को अब वो बच्चों को, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ कुछ मुझे कभी कभी ज्यादा गालियां याद आते हैं, आज गाली नहीं देता। जैसा बॉम्बे में स्टडी है, बॉम्बे में अच्छों को रेंट के लिए घर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए नहीं है, तुम कोई एक बहाना। तो ये सेग्रीगेशन का फोर्स, पहले मुसलमानों को अच्छा लग रहा था, अरे हमारे एरिया में जाएंगे, अजान की बात, ओ बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ जाके रहूंगा, ये आपका नजरिया। आप जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं गढ़ों में। और जो द अदर साइड वाले हैं, जालो सालों को भेजो उधर, हाँ वहां कहीं स्लम उलम होगा, उधर भेजो, उधर दे दो। वही तो हुआ दिल्ली का ग्रोथ, वही हुआ हर जगह। आप स्लम में जाएं, मोर देन 50% स्लम हाउस होल्ड्स आर मुस्लिम, वेयर आर इन पॉपुलेशन दे आर ओनली 15%। तो स्लम्स में 50% क्यों है? वो पुश एंड पुल फैक्टर, दोनों दे आर गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। But this has been happening for many years. decades. हाँ, मगर अब उनको प्लेन दिख रही है ना जाने वाले, Right. वो कनेक्शन हमारे नए बच्चों को मालूम हो रहा है। वो नए बच्चे वो बढ़े हुए हैं कैद में, उनको थोड़ी सी इजाजत दे दो तो वहां से निकलेंगे बाहर, माँ बाप को छोड़ के निकलेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर तो उनकी जिंदगी है। Right. मगर हम जकड़ रखे हैं उसमें।
अपने वो कल्चरल थ्रेड में, अपने इमोशन में, और डराते हैं बाहर गया हिंदू मार देगा तुम्हें, ये भी डर है ना। अब इसके अगेंस्ट में ये चीज कि यहाँ कोई किसी को नहीं मारेगा, जो आप सही काम करो, सही दिशा में जाओ, सही चीज करो, तो कौन किसी को मारेगा। एब्सोल्युटली। ये सब बेकार के बातें बीच में पॉलिटिशियंस टोपते हैं। आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। आई फील आई वाज बोर्न इन ए ग्रेट कंट्री एंड इंशाल्लाह आई वांट टू डाई हियर। और मैं एक एग्जांपल दूंगा अगर वक्त का हिसाब है तो। आई गिव लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं यूएस में बहुत लेक्चर्स दिया हूँ, इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज आई हैव गिवन लेक्चर्स। तो मुझे ये एक ऐसा ग्रुप मिला वाशिंगटन में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पूरे, तो उसमें थोड़े हिंदूज भी हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं बहुत सारे। मुझे ये पता नहीं था जो नासा है और जो NIH है, यू नो व्हाट इज NIH? दैट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ रिसर्च। वहाँ इंडियन मुस्लिम्स इतने डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट। हाँ, ये एक नाम याद आ रहा, अब्दुल्ला करके, बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो खुश हो जाएंगे। सलाम अलैकुम। तो वहाँ मैं एक लेक्चर दे रहा था, तो मैं ये लेक्चर देख के थोड़ा सा, वहाँ दूर हैं, हर दिन का एहसास नहीं है, तो थोड़ा डरे सहमे भी हुए, अरे भी इंडिया में क्या हो रहा है, मुस्लिम्स का क्या हो रहा है यार, हम तो यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, हम आ गए, हम वापस तो अब जा नहीं पाएंगे, बूढ़े भी हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, मगर जब इंडिया के बारे में सुनते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ इंडिया के बारे में, तो बैठ के देख रहे हैं। और जनरली मैं वो ये बोल रहा था कि जो आपने जो सवाल उठाया कि रिसोर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी के पास हैं, जो इकबाल ने बोले वो गलत बोले। मैं बोलता हूँ क्यों? क्योंकि उनका जमाना अलग था, वो टाइम का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट मॉडल अलग है। तो डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली एजुकेशन, हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन, 100% funds only with the government and it is responsible. गवर्नमेंट ओनली नहीं, गवर्नमेंट पास ऑलरेडी है, बजट में देखते रहता हूँ पैसे पड़े हुए हैं। तो मगर रिसोर्सेस कहाँ हैं? रिसोर्सेस गवर्नमेंट के पास हैं। पेरेंट्स के रिसोर्सेज आउट ऑफ पॉकेट जो ये रिसोर्सेस हैं, वो बेसिक सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट के पास हैं, इंडिविजुअल्स कम्युनिटी के पास नहीं है। No, but sir, then you also mentioned that you. So, do you think that the poor state of Muslims in India is due to politics, or do you believe otherwise? Is it because of? नहीं, ये लोडेड और इसके क्वेश्चन है। सी, मैंने इसीलिए कहा कि अब देखो भी, मैं तो 52 में पैदा हुआ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट इंडिया में। 2 साल पहले होता तो ब्रिटिश इंडिया में पैदा होता। हाँ, अब ब्रिटिश कितने साल थे जो कमांड में थे, उससे पीछे क्या था? अब हिस्ट्री पे जाएंगे तो हिस्ट्री का रिकॉर्ड ये कहता है, वो कई अभी मॉडर्न हिस्टोरियन कहते हैं वो पूरा हिस्ट्री गलत है, हम पूरा बदल देंगे, ठीक है, मगर कौन रूल कर रहे थे? तो बाय एंड लार्ज ये निकलता है कि मेजर जियोग्राफिक पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय those kind of people whose names were Muslims, whether they were Muslims or not। मेरे जैसे मुस्लिम होंगे थोड़ा बहुत, मैं हफ्ते में एक नमाज पढ़ लेता हूँ। मुझे पता नहीं अकबर पढ़ता था या शाहजहां पढ़ता था। अब उनके पास पावर था एंड दे हैड ए सिस्टम टू मैनेज एंड शो। अपना रोब दिखा रहे थे पूरे हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान की उस टाइम की जगह लिटरेसी नहीं, एजुकेशन नहीं, काले पीले लोग, प्योर इंडियंस, वो बाद में एरियंस आके बसे, वो गोरे पीले आप जैसे हम डिस्प्यूटेड थ्योरी। हाँ, वो टाइम पे इंडिया में वारफेयर का कल्चर नहीं था। इंडिया वाज एग्रीकल्चर डोमिसाइल सोसाइटी। इंडिया पीसफुल कंट्री है, मगर वो टाइम पे कितने लोग वो उनको मारा, वो हिंदू है इसलिए मारा, वो मैं इश्यू में नहीं जाता, मगर दे हैड द पावर फॉर ऑलमोस्ट 400-500 years, जहाँ पे मुसलमानों के नाम, बिल्डिंग, हर जगह मुसलमान। आप समझे, मैं बेंगलुरु से हूँ। मैं जब दिल्ली 92 में पहले आया, नहीं दिल्ली 81 में पहले आया, मेरी शादी के बाद मेरे वाइफ को, मैं यहाँ के पागल हो गया, क्योंकि यहाँ हिंदू की कोई अलामत नहीं थी। सिर्फ एक बिरला मंदिर दिखाने ले जाते, वो भी इतना छोटा सा, वो हैदराबाद उतना भी नहीं है बिरला मंदिर यहाँ का,
बाकी का सब ताजमहल देखो, वो हुमायूंस टॉम्ब देखो, ला इलाहा, ये देखो। अभी भी देखो, आपने इसकी किसी ने मुझे बुक दी है, तो उसमें अरबी कैलीग्राफी कितनी है दिल्ली में, तो आपको एहसास क्या हो रहा है? अब मैं मुसलमान हूं, यहाँ को मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे क्या है भी है, मैं ये कंट्री मेरा है, मैं बोलते हैं ये है, मगर यहाँ है। अब वही जो हिंदू आएगा, अब वो क्या सोच के जाएगा? तो एक हिस्टोरिकल बैगेज जब हमारे पास है, दैट ब्रिटिश आए, एंड ब्रिटिश चंद लोग आए थे, मे बी 20,000, 25,000, 30,000, घोड़े भी नहीं थे उनके पास, घोड़े की जरूरत नहीं उनको, क्योंकि तब तक बंदूक आ गया था, पिस्टल लेके मार देते थे। और उन्होंने क्या है यार, इतना बड़ा कंट्री है, अब इसके अंदर इन दो जनों को डिवाइड करो, एक दूसरे को मरवाओ, आराम से बैठो, शराब पियो, मजे करो, कश्मीर को जाओ, मजे करो। ये वही किया ब्रिटिश ने। हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम ट्रेन ट्रैक डाले, गोल्ड सोना चोरा, ये है सब चोरी किया, डेवलपमेंट भी किया, एक हमारे IAS ऑफिसर का कैडर बना के गए, एक सिस्टम, नहीं तो इंडिया यूनाइट नहीं हो पाता था। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज दे लेफ्ट इंडिया single country. So that is the greatness, that is why we have to just thank British and as a democracy. तो ये चीज जब आप देख रहे हैं, तो अब थोड़े से, अब वो जमाने में वहाँ हिस्ट्री है, यहाँ सोसाइटी है, आज का लाइफ है, हर किसी को पैसे कमाना है, हर कोई हैंड टू माउथ सर्वाइवल है, तो सबका प्रॉब्लम एक है, सबके डिमांड एक हैं, मगर उसमें सिस्टमैटिक थोड़ा सा 20 to 25% डेफिसिट है मुस्लिम्स को। 25, ऐसा नहीं मुस्लिम्स को नहीं मिल रहा है। तो वो कितना मिल रहा है? कोई दूसरे कम्युनिटी को एक 100% मिलना है, 90% मिल रहा है, और एक कम्युनिटी को 85% मिल रहा है, और एक कम्युनिटी को 95% रहा है, मुस्लिम को 70 मिलेगा। तो गैप है, वो गैप भर देगी गवर्नमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुस्लिम्स का सोल्यूशन MP MLAs के पास नहीं है, मगर मुस्लिम्स का पावर वोटिंग करने की क्यू के अंदर है। तब आप महिला हो, बूढ़ा हो, सब लोग वोट करेंगे, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, कोई भी पार्टी के हो, तुम्हें आके तुम्हें सलाम करेंगे, अरे कम से कम वोट हमें कीजिए। मगर आपको जाना चाहिए ना लेन में, आप 50% वोट करने नहीं जाते। आपका देखो, मुझे कौन, योगेंद्र यादव मुझे 30 साल पहले बताए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1952 का इलेक्शन, उसके बाद का इलेक्शन, उसके बाद का इलेक्शन, उसके बाद का इलेक्शन, वो मेरे बगल में रहते थे, उनका घर। एक दफा मिले, शरीफ तू थोड़ा सा वो डेटा देखना। मैं बोला कौन सा डेटा है यार? सब्सिक्वेंट election cycles में the share of Muslim vote is declining. तो अब वो एक्सक्लूजन कैसे शुरू हुआ? क्या ये फैटालिटिज्म है, जब विक्टिम हो रहा है, अरे भाई क्या है, हम तो विक्टिम हैं, क्या हम करने से हम क्या कर लेंगे? Perhaps this illusionment of some kind or victimhood syndrome is the better word. तो उसका सोल्यूशन इतना सिंपल है। आप कोई चीज नहीं चाहिए, खाली वोटिंग करो ना, जो वोट करना है मेहनत करो। अगर उसमें बाधाएं आए, लोग उसे करे, उसे सिस्टम कम्युनिटी को लेके पहले एडवांस नोटिस देके, देखो भी हमारे रास्ते खुले रहना है, हमें वोट बूथ को जाना है, इतना करो। मगर जिनके पास वोटिंग का है, तो ये वोट भी जाया नहीं जाना चाहिए, सब वोट करना चाहिए, तब मुस्लिम 10 साल के अंदर उनका स्टेटस बदल जाएगा। One last question, sir. Like the takeoff story which you mentioned was very interesting, India takeoff. How could Indian Muslims be stakeholders in the takeoff story, the larger India growth story? Indian families have to do whatever they are doing without fear, with more devotion. It doesn't matter what they do. जो भी काम कर रहे हैं वो नेशन बिल्डिंग का काम है। नेशन बिल्डिंग का काम ऐसा नहीं है कि उसको पद्म भूषण देना है। हर इंसान नेशन बिल्ड कर रहा है, तभी जाके इंडिया महान हो रहा है ना। आप GDP कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? मैंने एक चैप्टर, एक किताब है, किताब में चैप्टर है, आप पढ़ लेना। और ये मैं पूरे ऑडियंस, पूरे इंडिया के ऑडियंस को मैं मुखातिब होकर बोल रहा हूँ। तो मैंने एक ऐसा डेटा निकाला है जिसमें मेरे 3 साल गुजर गए।
3 साल, इट टुक मी 3 years. नेशनल सैंपल सर्वे डेटा जो रिकॉर्ड्स में मिलता है, वो डेटा एंड अनदर डेटा, वो उसको मर्ज करना है, हाउस टू हाउस मर्जिंग, और उसके अंदर नेशनल एनएसएसओ के डेटे में इनकम निकालना है, और दूसरे डेटे से एजुकेशन लेवल, आप काम क्या, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप रूरल में रहते हो, अर्बन में, आप वुमन हो या बी में, और आपका फैमिली इनकम क्या है, ये इनकम डेटा भी गवर्नमेंट इकट्ठा करती है हर घर का। वो उसे मर्ज करे हमें, वो मर्ज करने में 3 साल लगे हमें, बहुत सारा पैसा खर्चा किया। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो आपको मिलेगा, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स करके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मेरे नाम से बुक है। उसमें एक चैप्टर, हाउ सोशल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट्स जीडीपी। ओके, तो अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें क्या लिखा है मैं भूल गया हूं, बहुत साल पहले। तो अभी आप 1000 बच्चे यहां रखो और 1000 बच्चे यहां रखो, और उनके 5 पैरामीटर लो, उनका हाइट लो, वेट लो, एजुकेशन लो, जो भी करना है, उनका आईसाइट लो, जो भी 5 या 10 पैरामीटर्स। तो ये और ये सेम पैरामीटर्स, और उनको आप कोई टास्क देंगे एक जैसा। अब वो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होगा टास्क देना, मगर हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास डेटा था, ये 1000 बच्चे और उनके फैमिलीज, और ये 1000 बच्चे और इनके फैमिलीज, उनका डेटा हमने कंपेयर किया। तो ए एंड बी ग्रुप, हमने देखा कि ए ग्रुप जो टोटल वैल्यू एडेड पर पर्सन पर कैपिटा हमारे देश को दे रहा है, अस्यूम दैट उसकी वैल्यू x1 है। वो 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख हो जाता है, एवरेज समझो 1 लाख रुपए। ये वाला 1 लाख रुपए एवरेज वैल्यू दे रहा है देश को, बिजनेस में, कमाई में, टैक्स में, हर चीज उसका। और हमने देखा बी में वो 1,10,000 रुपए दे रहा है, एक्चुअली 10 नहीं 14, ये 1,14,000 दे रहा है। बाकी का सब कैरेक्टर सेम है, अगर उनको रेस में दौड़ाओगे तो अप्रोक्सीमेटली दोनों मेरे ख्याल से इक्वल रहेंगे। ओके, अब ये में कौन है, बी में कौन है, आप गेस करो। आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आपको मालूम हो गया। राइट। सो ये में कौन है, ये ग्रुप में 1000 बच्चे, राइट, जो 1 लाख कमा रहे हैं। बी ग्रुप में 1000 बच्चे जो 1,14,000 रुपए कमा रहे हैं। तो ये में कौन होंगे, बी में कौन होंगे? ए वुड बी मुस्लिम्स, हाँ, एंड बी वुड बी हिंदूज और एक्चुअली इट इज द अदर वे अराउंड। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। इट इज पब्लिश होता है, वो ऑडिट होके जाता है, पूरे इकोनॉमिस्ट ये वो यहाँ वहां फाड़ फूड़ के मुझे ग्रिल करके उसके बाद पब्लिश किया है। उसे बोलते हैं पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स। Okay. वो ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़पेपर में कुछ छाप दिया, वो ऐसा नहीं है। वो क्यों है, उसका मतलब यह है, बाद में मुझे सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम यूएस एंड सोशियोलॉजी फ्रॉम इंग्लैंड, they told me, yeah, this is we could never do this research, but you have done it, but this is accurate. क्यों? मगर उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्शियल है। उन्होंने कहा, in any country of the world the minorities work harder. Okay. Any country in the world. तो माइनॉरिटीज इंडिया के दे वर्क हार्डर एंड देयर एवरेज प्रोडक्शन फॉर कंट्रोलिंग फॉर ऑल अदर फैक्टर 14% हायर। बट दिस इन अ पर्टिकुलर ईयर और ये डेटा गवर्नमेंट का डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सेंसस का डेटा और वो डेटा वो चैप्टर पढ़िए, और वो अभी वो रिसर्च होने के बाद 15 साल हो गए हैं। ओके, मगर मुझे मालूम है वो डेटा चेंज नहीं होता। वो सिस्टम जो अभी क्या था, उसमें थोड़ा वो आता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ करप्शन एंड बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म सर्टेन टाइप ऑफ चिल्ड्रन गेट हाई पेड जॉब्स, वो बढ़ रहा है इंडिया में। राइट। मगर ये पूरे है ना, लो से हाइट के सबका इनकम एवरेज कर रहे हैं 1000 आदमियों का,
तो मुझे लगता है अभी भी वो डिफरेंस अभी भी रहेगा, ऑल्दो मुस्लिम्स का एजुकेशन नहीं बढ़ा, मुस्लिम्स के जॉब हायर लेवल पे कम है, उसके बावजूद मुझे मालूम है आज, मैं गेस कर रहा हूँ ये, Skills maybe. हाँ स्किल्स हैं, और नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क. Right. So we're completely running out of time now. So आपको उसका जवाब मिला? Yes, I got it. Then we'll have So to the trades Muslim labor has actually increased GDP by 2%. मैंने estimate करके दिया, 2%, जो भी 8% है ना, हम ग्रो हो रहे हैं, Right. मुस्लिम्स को इक्वल लेवल पे लाइए, 10% हो जाएगा. That's an interesting take, sir. Now we have completely run out of time. Thank you for taking the time and participating in this discussion. Thank you, Thank you Aatish. very much.